Hello everyone, my name is Vaishnavi Gupta. Welcome back to my channel. I'm not at all excited for this video here for the first time, but I bet you are. I bet you are because I'll be telling my college allocation, my क्या मैंने किया in the last week of July, my reaction to NTA stuff or shit they're doing, and my CUET marks, my normalization score, my college, private EDU, and everything. So there's a lot of tea in this video. So and you also need to watch this video like starting from the end, or else तुम्हें समझ नहीं आएगा because this is in a story format and it's not the usual normal बच्चे की जिंदगी वाला. मेरी जिंदगी थोड़ी अलग है, मैं थोड़ी हटकी बच्ची हूँ, you know. So a lot of things have been happened and I'm going to tell you about it all. So just stay tuned and I hope you enjoy this video. Also, if you're new to my channel, make sure to subscribe because you're not going to regret that. And it's free. And you can unsubscribe जब भी तुम्हें लगे कि I'm not worth watching, which I hope I don't give you many reasons for. By the way, I went to Miranda House yesterday, you know, like, yeah, Miranda House, the Delhi University North Campus college, या जो खालसा के साथ है, या जो विश्वविद्यालय वाले मेट्रो स्टेशन से जाकर देना होता है, yeah. Here's some photos. Yep, so I went there. Oh my god, Vaishnavi, तुम्हारे के मिरांडा हाउस में हो गया है? I wish, girl. I wish, boy. Not really. I'm not sure though. But नहीं. Okay, I went to Miranda House because ECA trial. तो मैं सारे spoilers अभी starting में दे देती हूँ. Now, what are ECA trials? ECA is a quota, जिसे पता है. It's a quota basically. Delhi University में जाने के लिए it's a quota. It's like you can say skills quota. So if you have skills in dance, singing, music instrument, theater, or anything. You could have guessed मैं कितने ड्रामे करती हूँ and the people have called me Nautanki for all my life. So yeah, I did go for theater and I did not realize वहाँ बहुत सारे बच्चे थे like बहुत. तो you can apply for 3 ECA. तो ECA stands for extracurriculars activities. So ये कोटा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिसमें कुछ सीट्स allocate होती है. For example, if there are 10 colleges in North Campus, so around 20 seats are like सिर्फ थिएटर वाले बच्चों के लिए हैं और 10 seats are for डांस वाले बच्चे. तो अराउंड 13,000-15,000 जितने ही बच्चे ECA के लिए अप्लाई करते हैं उनमें से 10-20 बच्चों को इसके थ्रू मिल जाता है वो. एंड मेरी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे जो लोग मुझे पहले से नहीं जानते हैं. आई हैव पार्टिसिपेटेड इन लाइक नुक्कड़ नाटक स्ट्रीट प्ले में मैं काफ़ी एक्टिव थी इन माई स्कूल, स्पेशली इन हाई स्कूल. और सिर्फ हाई स्कूल का ही कंसिडर होता है. सो आई डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रीट प्ले. मैंने CBSE जोनल का किया. आई डिड इंटर स्कूल. आई वेंट अप टू स्टेट लेवल पार्टिसिपेशन का, डिस्ट्रिक्ट लेवल फर्स्ट पोजिशन एंड जोनल लेवल सेकेंड पोजिशन as a group, of course. So that was on corruption, by the way. So I was like, oh, I need to do that. By the way, मुझे इस बात का पता चला था after my boards were ended and I have scored like 86.2%, which I'm not at all happy or satisfied about. It is just something that I've accepted and I'm grateful for. That's all. If you ask me, I'm happy, and like those kids, I would have been happy if 90 plus hota, but let's not get into that. Alright, so this is what I applied for, and maybe this is the reason कि मैंने CUET पे बहुत ज़्यादा focus नहीं किया because I kind of knew कि मैं तो ECA का करूँगी and all that करूँगी. So my normalization score was like 80 marks कम, 80 marks कट गए मेरे. Yeah. Let me talk about this first, okay. NTA, I think, this is now totally my assumption. If you're not from Delhi, please do not get offended by this. Also, I posted one video related to this, like if somebody takes some insult or something on them, so it is your decision, not my intention. It's not my intention to offend anybody, but it's just my opinion. I was discussing with a girl जो मुझे इसी ट्रायल में भी मिली थी, and she was like agreeing with me when I said कि हो सकता है कि दिल्ली वालों के मार्क्स बहुत ज़्यादा काटे हों. Now maybe देखो NTA का solely reason क्या होता है किसी के मार्क्स काटने का कि इस बैच में काफ़ी अच्छे बच्चे को मार्क्स, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए तो वही पेपर आसान होगा. बट द पॉइंट इज कि CBSE के मोस्टली स्कूल्स है CBSE एंड मेरे बच्चे अच्छे पढ़ने में हैं अच्छे. मेरा सेंटर भी नोएडा में था, सो इट वॉज नॉट आसपास के ही लोग होंगे मोस्ट प्रॉब्ली. तो मे बी सबका पेपर अच्छा गया क्योंकि बच्चे अच्छे थे पढ़ने वाले हैं इसलिए मेरे सब में मार्क्स कट गए. माई इनिशियल स्कोर वाज 730 विच वाज आल्सो वेरी लेस कंसिडरिंग नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ है, किसी की भी कट ऑफ. तो उसके लिए मिनिमम 850 प्लस चाहिए होता है to get a North Campus for BCom honors, which is the course that I'm pursuing and I want to, or BA program. Because BCom plain मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कहीं नहीं डाला है, एक आध होगा. I either want honors या फिर BA प्रोग्राम हो जिसमें मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ. Okay, we'll talk about प्रेफरेंस लिस्ट थोड़ा सा आगे है एंडिंग के वीडियो में for in another video. अभी we'll talk about क्या क्या कर रही हूँ मैं.
सो 80 मार्क्स मेरे कट गए, विच आई वॉज वेरी शॉर्ट बिकॉज आई वॉज डिस्कसिंग विद माई फ्रेंड एज वेल, और मुझे पूरा एक्सपेक्टेड था कि मेरे मार्क्स बढ़ेंगे बिकॉज AI से ही पूछ रही थी मैं कि इस बैच के इस वाली शिफ्ट के क्या रिव्यूज थे, ये पेपर ईजी था, डिफिकल्ट था एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट सेड कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, तो चांसेस थे कि मेरे 10-20 मार्क्स बढ़े, और अगर मेरे बढ़ते तो शायद मुझे थर्ड राउंड स्पॉट राउंड कहीं भी वेंकी जैसा कॉलेज मिल जाता, लाइक साउथ कैंपस अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाता इन BCom ऑनर्स से BCom। पर मार्क्स बढ़ने छोड़ो, इतने कम हो गए कि मुझे जनरल कैटेगरी एज अ फीमेल स्टूडेंट मुझे नहीं मिल रहा कोई भी कॉलेज, ऑफ कैंपस ही मिलता या कोई। अभी जो मुझे कॉलेज एलोकेट हुआ है दैट इज सत्यवती, एंड ओ माई गॉड लेट्स नॉट गेट इन टू सत्यवती। मैंने दिस वॉज लाइक कॉलेजेस होते हैं ना, मैं ऐसे डालने के डाल देते, लाइक मैंने बहुत ही इट्स नाउ माई टेक्निकल, बिल्कुल मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो कुछ भी, टेक्निकल दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट भी नहीं हूँ मैं, आई डोंट नो कैसे कॉलेजेस हैं, बट मैंने कुछ कॉलेज आए थे जो ऑफ कैंपस साउथ कैंपस के, मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जब तक मैंने सुना रिव्यूज, फैकल्टी वगैरह, प्लेसमेंट, एवरीथिंग कंसिडरिंग, लाइक श्यामलाल वॉज देयर, there was Kamla Nehru I guess considered is good, plus the Satyavati was there, and एक आध और थे, पर मैंने बहुत ही लाइक जाकिर हुसैन, रामलाल आनंद और ये सब कॉलेजेस मैंने डाले ही नहीं थे लिस्ट में, बिकॉज मेरा था कि ECA से होगा तो या मेरिट बेसिस के हिसाब से मैंने इतने डाल दी कि इतना तो मिल ही जाएगा, दैट इज समथिंग विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग, पर मुझे इतना ही बुरा कॉलेज मिल जाएगा, सॉरी टू से इफ यू हैव गॉट दिस, इट्स रियली नॉट दैट बैड मे बी, बट बहुत ऑफ कैंपस है, अशोक विहार साइड, आई डोंट नो राइट नाउ द सीनियर्स मैंने एक्सेप्ट कर लिया है उसे, और वो भी कर दिया है। नाउ व्हाई डिड आई एक्सेप्ट एंड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक आई एम मिक्सिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, दिस इज बैड, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ बिकॉज मैं 6-7 स्टोरी एक साथ मिक्स कर रही हूँ, बट मेरा दिमाग बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड हो रखा है बिकॉज इट्स सो मच टू टेल यू गाइज, एंड इफ यू आस्क मी कि मैंने टाइम टू टाइम से मैं अपडेट नहीं की, नहीं किया, लाइक अदर यूट्यूबर्स मे डू, और इवन यू गाइज वर अकाउंटेबिलिटी चाहते थे मुझसे, अकाउंटेबिलिटी की बात आई थिंक हमें अभी नहीं करनी चाहिए बिकॉज अकाउंटेबिलिटी तो हमें किसी और से चाहिए। खैर वो रीजन अलग था अकाउंटेबिलिटी का, मेरा तुम्हारा रीजन अलग था, you just wanted because I shared my journey, you wanted to know the result, but the thing is since I was not hiding but मुझे ECA का नहीं बताना था, which I'll tell you later why, बस मेरा पर्सनल रीजन था, आई थिंक आई एम ट्राइंग टू now overcome those you know कि चार्म्स जो मैंने पहन रखे हैं, द ब्रेसलेट्स में बना हुआ ईवल आई, मुझे लगता है नजर लग जाती है, तुम बताते हो, और स्पेशली आधी पकी हुई खिचड़ी मुझे बताना पसंद ही नहीं है, मैं पूरी जब बन जाएगी तब तुम्हें बताती है अच्छे से, खुशी से दुख से, जैसे भी, लाइक CBSE का फाइनल रिजल्ट आया मैंने तुम्हें बता दिया, अब खुश हूँ नहीं हूँ बट बता दिया, बट पहले अगर मैं बता देती और कुछ गलत हो जाता तो आई माइट इन द बैक ऑफ माई माइंड आई वुड हैव थॉट कि मैंने यूट्यूब पे सबको बता दिया इसलिए ऐसा हुआ, विच इज समथिंग आई डिड नॉट वांट, बट देन आई रियलाइज कि ECA का रिजल्ट तो बहुत लेट आएगा, लाइक उसका रिजल्ट आता है अगस्त में, तो फिर बहुत लेट हो जाता है, एंड विच वुड नॉट हैव बीन फेयर टू यू ऑल एज वेल, सिंस मैंने काफी कुछ अभी तक रिवील नहीं किया था, तो इसलिए डिसाइड टू ओवरकम दिस एंड शो यू दिस, क्योंकि अभी रिजल्ट भी नहीं आया, मैंने सिर्फ कल ही किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस बाद में शेयर करती हूँ, पर मैंने कल ही दिया है, अभी आई हैव नो आइडिया क्या होगा, कुछ अपग्रेड होगा भी कि नहीं होगा, क्या कंसिडर किया गया है क्या नहीं, बट स्टिल डिसाइड टू शेयर कि होपिंग दैट माई ऑडियंस ऑफ कोर्स मेरा बुरा नहीं जाएगी, और कौन ही मुझे नजर लगाने वाला बैठा है, एंड अपने ऊपर भरोसा ज्यादा रख रही हूँ मैं, रादन की नजर लग जाती है और ये सब मिथ्स में जो है, बट आई काइंड ऑफ डू बिलीव, बट लेट्स नॉट गेट इन दैट, ओके। नाउ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, मैंने सिर्फ 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया था, अशोका एंड साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन इज अ फॉरेन यूनिवर्सिटी विच हैज कम टू इन इंडिया लाइक NEP के थ्रू एंड ऑल दैट, विच इज इन गुड़गांव, एंड दिस अशोका इज इन हरियाणा साइड, वो भी हरियाणा में ही है शायद, ओके। Okay, in 17 years of my life, I have never been rejected. So I was the good student. जैसे एक तो हर बात पे हाँ भी मिल जाती थी. Not the pampered child, if pampered child हाँ, but ऐसे नहीं spoiled child नहीं थी कि हर बात में हाँ मिल रही है. मतलब नहीं ऐसे academically कैसे भी, मुझे no नहीं मिला. So if there's a yes or no question, I've never gotten a no from a person, from some university, from some teacher. Never a no is something that I've received. But for the first time in 17 years of my life, जब देखो ऐसा होता है कि बोर्ड्स में मैंने कम मार्क्स स्कोर किए जितने एक्सपेक्टेड थे, CUET में कम है, किसी में ज्यादा, दैट इज अनदर थिंग, बट गेटिंग ए नो और यस में नो मिलना वाज नॉट समथिंग टू मी, एंड जिनमें तुम में से काफी लोगों को भी कभी नो नहीं सुना होगा कि रिजेक्शन फेस हुआ है, लाइक आई गॉट रिजेक्टेड, तो यू माइट रिलेट, बट व्हेन आई ओपनड माय मेल दिस अदर डे एंड आई सॉ we are sorry, we are regretful to tell you that, we are sorry to tell you that something, so I was थोड़ा सा shattered, थोड़ा से ज्यादा नहीं, बिकॉज एक तो पहली बात मैं जा भी नहीं सकती थी इस कॉलेज में, दैट इज अ रेसिडेंशियल कॉलेज विच इज समथिंग माई पेरेंट्स वोंट अलाउ, बट स्टिल मैंने भर दिया था, एंड अशोका मैंने बैकअप रखा था, विच इज अ वेरी वियर्ड थिंग, बिकॉज आई टॉक टू दिस गर्ल अगेन, बैक टू द स्टोरी, जब मैं अशोका का पेपर देने गई थी, एंड आई वाज टॉकिंग टू दिस गर्ल ब्ला ब्ला, शी वाज टेलिंग कि मैंने OP जिंदल का भरा, इनका ये इंटरव्यू हुआ, ये हुआ, तो आई वाज टेलिंग कि तो मेरा बैकअप है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, शी इज लाइक अशोका बैकअप होता है, आई वाज लाइक हाँ, मैं आई एम फोकसिंग ऑन DU मोर,
तो तभी मुझे समझ आ गया था कि अशोका को ना काफ़ी हाई क्लास, लाइक इट्स नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी फॉर कॉमर्स एंड दिस मैनेजमेंट वगैरह। मैंने दोनों में ही बिजनेस मैनेजमेंट का भरा है, तो अशोका से आई गॉट रिजेक्टेड विच वॉज वेरी शॉकिंग टू मी। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे जाना नहीं था, और मिल जाता तब रिजेक्ट कर दिया, बुरा लगता, पर तब भी अच्छा भी लगता कि मैंने रिजेक्ट किया, आई डिड नॉट गेट रिजेक्टेड। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी रिजेक्शन फेस नहीं किया, तो बाद में करती, लाइक सूनर बेटर देन लेट। तो ओके, हो गया, जो भी था इतना ही था। साउथहैम्पटन में आई गॉट एक्सेप्टेड, बट फीस आई एम वेटिंग फॉर माई स्कॉलरशिप रिजल्ट, और एल्स आई नॉट गेट इनटू दैट, बिकॉज जब मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो मैं क्यों प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 20, 30, 40 लाख रुपए खर्च करूंगी, राइट? सो वो भी लोन वगैरह लेके, एजुकेशन लोन या वट एवर, सो दैट्स नॉट हैपनिंग। Okay, now this is about private universities and all. Now back to DU. अब मेरा ये नॉर्मलाइजेशन का जब स्कोर आया था, तब मेरी सारी होप्स हो गई थी खत्म। आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कि मुझे तो मेरा थिएटर ही बचाएगा। इतनी बात नहीं है ना, सेड इन माई प्रीवियस वीडियो एज वेल कि मैं 3-4 बार स्कूल गई थी, एंड आई एम नॉट श्योर, किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि कितनी बार स्कूल क्यों जा रही है, बट द थिंग वॉज मैं अपने सर्टिफिकेट्स लेने जा रही थी। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट्स मुझे अभी तक नहीं मिले हैं, एंड माई स्कूल सेड कि सर्टिफिकेट्स बेटा प्रिंट नहीं हो रहे हैं, एंड जो मेरी जोन की हेड है शी ऑल्सो सेड कि सर्टिफिकेट्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं। आई वाज लाइक मैं DOA की ऑफिस भी चली जाऊंगी, जो जोनल्स वगैरह CBSE का ऑर्गेनाइज कराते हैं, पर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरा कॉलेज डिसाइड करेगा। तो द बेस्ट आई कैन डू एज अ स्टूडेंट वॉज, मैंने लेटर लिखवाया अपनी प्रिंसिपल से, मतलब मैंने लिखा, प्रिंट करवाया, फॉर्मली प्रिंसिपल के साइन कराया, स्कूल का स्टैम्प, लेटर एंड एवरीथिंग, एंड मैंने अपलोड कर दिया DU के पोर्टल में। ये फेज 1 ही फेज 2 में करता है। ऑल्सो आई मिस माई फेज 1 बिकॉज आई वाज अटेंडिंग वेडिंग्स फॉर गॉड्स सेक, एंड फेज 2 में मैंने फेज 1 भरा था, पर मुझे पता था कि फेज 2 में भर दिया जाएगा। बट स्टिल मुझे थोड़ा सा लगा कि वैष्णवी तो काफी ज्यादा लेट बैक कर रही है, कि फिर मैंने एक ही दिन 2 दिन में बैठ के प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में बहुत टाइम लगा। मेरी प्रेफरेंस वाज नॉट टू गेट इनटू अ गर्ल्स कॉलेज, अभी भी बिल्कुल भी नहीं है, बट आई थिंक जितना मैं बोल रही हूँ बिल्कुल भी नहीं है, आई एंड अप बीइंग इन देयर। देखो, आई एम नॉट अ पिक मी, इट्स जस्ट द फैक्ट दैट आई हैव बीन इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल फॉर 13 years, and for the love of God थोड़ा सा exposure is needed, not to do anything but just to be able to talk and like you know, लेकिन नॉर्मल एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट जॉब में कहीं भी जाऊंगी, वर्ल्ड इज नॉट ऑल गर्ल्स, राइट? तो इसलिए, बट या ऑफ कोर्स DU में बहुत सारे कॉलेजेस है, गर्ल्स कॉलेज, और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, तो मैंने डिसरिगार्ड भी नहीं किया, और उसको ऐड करके मेरी प्रेफरेंस लिस्ट अराउंड 58-59 तक आराम से बना दी मैंने, जबरदस्ती खींच के। ओरिजिनल मेरी 30 के आसपास ही बन रही थी, बट ओके, तो लिस्ट वगैरह बन गई। एंड दिस डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे मुझे बार बार स्कूल जाना पड़ रहा था, फिर TC लेने के लिए अलग जाना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे पहले नहीं मिला था। मेरे स्कूल वाले इतने स्लो हैं, ओ माय गॉड, इज गिविंग गवर्नमेंट। इवन DU इतना स्लो है, इवन DU इतना स्लो है, मतलब आई कैन नॉट टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। पर हाँ, सर्टिफिकेट्स नहीं मिला, तो व्हाट आई कैन डू बेस्ट, मैंने वो लिया प्रिंट आउट वगैरह, एंड आई हैड 2 सर्टिफिकेट्स, मेरा इंटर स्कूल का सर्टिफिकेट और मेरा जोनल का सर्टिफिकेट, तो मैंने वो अपलोड कर दिया, 3 चीजें। यू आर सपोज टू अपलोड मैक्सिमम 5 सर्टिफिकेट्स, मिनिमम आई थिंक 1-2 भी चल जाता है, बट 3 बेस्ट वो काउंट करते हैं कि इतना। और लाइक इसमें आई थिंक, जैसे जितना मुझे पता है, इट्स लाइक 15 फॉर दिस सर्टिफिकेट्स एंड 60 फॉर योर परफॉर्मेंस, सो आई नीड टू परफॉर्म अ मोनो एक्ट समथिंग। दिस वाज द फर्स्ट टाइम बाय द वे परफॉर्मिंग मोनो एक्ट, मैंने आज तक कभी मोनो एक्ट परफॉर्म नहीं किया। येस्टरडे वाज द फर्स्ट टाइम आई परफॉर्म्ड अ मोनो एक्ट, दैट टू फॉर सच एन इंपॉर्टेंट थिंग कि वो मेरे कॉलेज डिसाइड करेगा। एनीवे, मैंने भर दिया। इवैल्यूएशन वगैरह जब हमारे वहां पर हो रहा था, 9:30 का टाइम था, मेरा अंडा हाउस मुझे पहुंचना था। ओके, आई थिंक मैं कुछ मेन चीज भूल रही हूँ। 16 July, the most weirdest day of July and probably this year so far is 16th July. मुझे लगा था DU कॉलेज जब अलॉट हो जाएगा तो मुझे मेल आएगा कि वैष्णवी तुम्हें ये कॉलेज अलॉट हो गया है, ले लो, एक्सेप्ट करने कर लो। दिस वन फ्रेंड्स मैसेजेस मैं आस्क करती हूँ, मैं आस्क कर कि कहाँ से देखने रिजल्ट। शी इज लाइक वेबसाइट खोला, आई वाज लाइक मेल पे नहीं आता। शी वाज लाइक बहन वेबसाइट पे आता है रिजल्ट। और ये सेम चीज मेरे साथ रिवैल्यूएशन में भी हुई थी, मुझे कुछ लग रहा था कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, एंड शी वाज लाइक ब्रो ऐसा नहीं होता है। मैं थोड़ी लॉस माइंडेड हूँ, मे बी एब्सेंट माइंडेड। शी टोल्ड मी टू गो ऑन दी वेबसाइट। आधे घंटे तक मैं ढूंढ रही हूँ वेबसाइट, पता नहीं मैं क्या गलत खोल रही हूँ, मेरे कुछ और लिंक सेव है, आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग, सो pissed off या annoyed. I asked her मुझे लिंक भेज। She sent me the link of the website. मैं सही खोल रही थी, मुझे बाद में रियलाइज हो गया, पर मैं वेबसाइट के थ्रू नहीं जा रही थी। I had this link saved कि जहाँ से मुझे लॉग इन करना है। वो एक्चुअली 9 बजे तो इनका रिजल्ट आया है, 5 बजे से बोल के, तो क्या ही कहना। Now that I open the website, I see instructions for EC and ACA schedule. Oh my god, my hand is shivering, but I'm still silent sitting on my sofa and I click on the link. Then ऐसी ECA में इतनी सीट्स हैं, सब सीट एलोकेशन एंड ऑल दैट, और मेरे पास ना आई एम पार्ट ऑफ अ फ्यू ग्रुप्स जिसमें ये सब अपडेट्स आते रहते हैं, बट मैंने उसे अचीव कर रखा है बिकॉज बहुत सारी बातें भी होती रहती है, आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। एनीवे, तो ये जब मैंने खोला
तब मैंने देखा शेड्यूल आ रखा है और कब की डेट लिखी हुई है 11th जुलाई को शेड्यूल आ गया था एंड टुडे 16th जिस दिन मैं देख रही हूँ ये. Then I scroll and scroll. Theater starts from when? 16th of July. मैं भी थिएटर के लिए जाने वाली थी ना. अब लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम दिस टू दिस को इस वाले दिन आना है. अब मैं इतना ज्यादा पैनिक कर गई हूँ कि मेरा इतना दिमाग नहीं चल रहा कि मैं अपना CUET नंबर डाल के देख सकूँ कि क्या मेरा नंबर निकल चुका है. कल है तो आज कैसे प्रिपेयर करूंगी कुछ भी. What I do is take a screenshot, ask AI अपने रोल नंबर देके कॉपी करके कि मेरा शेड्यूल कब है. It says it was 16th July 2 p.m. The last hope of me getting into a good DU college and not Satyavati was ECA. And ECA is something which I missed. Like I missed. 16 जुलाई 2 बजे को था और मैं 16 जुलाई 9 बजे को ये 6:30 बजे मैंने ये चीज़ देखी पहले कि मेरा मिस हो चुका है. I was looking on the verge of crying but I did not. So I called my brother and told कि मेरा मिस हो गया. अब मैं करूँगी क्या? Because मुझे पता है there is only option for me to upgrade. अपग्रेड होके भी जिस हिसाब से मेरे स्कोर आए हैं मुझे कुछ ना टॉप साउथ कैंपस मिलेगा ना मुझे नॉर्थ कैंपस मिलेगा फॉर माई कोर्स BCom ऑनर्स. BA प्रोग्राम में कुछ भी अगर मैं बहुत फालतू का कोर्स ले लूँ फिर तो कुछ भी मिल जाएगा. बट कोर्स ऑल्सो मैटर्स एज वेल एज कॉलेज. तो दैट वाज वेरी वो ना 1 घंटा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल से था कि मैं करूँ क्या. मुझे समझ नहीं आ रहा. सो द बेस्ट थिंग आई डू वाज कि मेल डाल के देखते कि अब तक कोई डेट शिफ्ट हो जाए. सो आई सेड कि मेरे को शिफ्ट करना है. आई डिड नॉट नो दैट. ऐसे कि मैंने कुछ फॉर्मली मेल लिखा और उनका रिप्लाई नहीं आ रहा है. नाउ आई एम टॉकिंग विद माय फ्रेंड्स एज वेल. लेकर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अलॉट हुआ कि नहीं हुआ. कोई बता रहा है अलॉट नहीं हुआ, कोई बता रहा है अलॉट हो गया. अब मैं अपनी अलग में सोच रही हूँ कि मैं अलॉट लेवल में इसमें जाना ही नहीं चाहूंगी. आई रादर नॉट बी अ पार्ट ऑफ DU दैन टू बी अ पार्ट ऑफ सच कॉलेज. तो ये मेरे दिमाग में था. तब ही आई थिंक 9:30 और समथिंग मुझे मेल रिसीव होता है व्हाइल आई वाज इन अ कॉल विद माय फ्रेंड. आई लिटरली स्क्रीन की ओए मेरा ये रिजल्ट आ गया ना होता क्योंकि मेल में आता है योर ECA ट्रायल हैज बीन शेड्यूल्ड टू 18 जुलाई बेस्ट विशेस. एंड ओ माय गॉड देयर वाज लाइक अ सेंस ऑफ होप. मैंने आई लिटरली रोट अ जर्नल. आई लिटरली वाज लाइक टॉकिंग टू गॉड माय सेल्फ की व्हाट डिड आई मिस, व्हाई डिड आई मिस एंड व्हाई वाज आई नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट. एक तो मुझे ECA एट द फर्स्ट प्लेस पता नहीं था ऐसा कुछ होता है. व्हिच आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द ऑल द 12th and 11th because this is so important for you. I think once I get college then I'll be better to tell. And also even if it's not important, that was the only reason मैंने थोड़ा CUET को शायद सर के लिया वैसे मैं नहीं लिया था as such a kind of. but हाँ this was very important to me and मैंने वो मिस कर दिया. मैंने I was talking to the senior as well जो मुझे थोड़ा बहुत बता रही थी कैसे करना होता है क्या करना होता है. मोनो एक्ट होता क्या है because मुझे कुछ आइडिया नहीं था. आई एम कमिंग फ्रॉम अ नुक्कड़ नाटक का बैकग्राउंड. मोनो एक्ट बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम नुक्कड़ नाटक करना. दैट ग्रुप में उसमें इतना लाउड होना होता है, एग्जैजरेशन होता है. मोनो एक्ट इज नॉट दैट राइट. तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि दी आई मिस माई ECA ट्रायल, थोड़ा अर्जेंट है क्या मैं आपसे कॉल पे बात कर लूँ. एंड देन शी रिप्लाइज विद ओ माय गॉड हाउ डिड यू मिस योर ECA ट्रायल. एज लाइक मुझे लगा था कि मेल पे आएगा पर आई डोंट नो वेबसाइट पे आया. मैंने चेक ही नहीं किया. मेरा आज 2 बजे था. मैं क्या करूँ. 110% मैं पैनिक मोड पे थी. वो 1 घंटा जेन्युइनली आई एम नॉट किडिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था. नोइंग कि मेरा फ्यूचर पूरा पलट चुका है. मैं कहाँ आ गई हूँ अब. अभी मुझे वैसा सच पता नहीं है बट मेरे अंदर बस ये है आई वाज जस्ट होपिंग फ्रॉम द गॉड नॉट इवन फॉर अ बेटर कॉलेज एट दिस पॉइंट. आई वाज जस्ट होपिंग टू गेट अ सेकंड चांस दैट आई मिस्ड बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर. देयर वाज नोबडी टू गाइड मी टू टेल मी कैसे ECA देखते हैं, कैसे फॉर्म भरते हैं ECA का, ECA होता क्या है इन द फर्स्ट प्लेस. somehow everything worked out, all is well. अभी तो end नहीं हुआ है but still all is well. मैंने 18 जुलाई को शिफ्ट हो गया 9:30 बजे. मुझे एक दिन ही था to prepare my script, to refine it, to practice. I called my ma'am, मेरी एक स्कूल की retired teacher. She decided to help me as well very much. उन्होंने मुझे बताया कैसे एक्टिंग करो, क्या वॉइस करो. उनकी ही स्क्रिप्ट का आइडिया था बट स्क्रिप्ट मुझे खुद लिखनी पड़ी थी. आई यूज AI a bit to क्या लिखूँ मैं, कैसे करूँ, कितने मिनट का बन रहा है. आई डिड इट. रात में काफी लेट से 18 जुलाई को मैं गई. मिरांडा हाउस इज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बन रखा है. क्लासरूम मुझे काफी छोटे लगे बट सीनियर्स वर आल्सो गुड जो थिएटर की बैकग्राउंड से थे. एंड मेरा परफॉर्मेंस हुआ बट जजेस वर रूड. सो बेसिकली ये लोग हर किसी का एक्ट बीच में रोक दे रहे हैं. अब ये ब्रेकफास्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे आई डोंट नो. भाई तुम 20 बच्चे आए हुए हैं, 9:30 बजे शुरू हुआ है एंड यू टेलिंग मी 2 बजे दूसरी शिफ्ट होती है ECA की ही. तो इट्स लाइक थिएटर 10 दिन चलता है, डांस 10 दिन चलता है. बिकॉज DU में ना डांस थिएटर के इतने सारे बच्चे आते हैं, मतलब हद नहीं है. जनता की जनता आ रही होती है जिनका बस एक्सपीरियंस है नहीं है. एवरीबडी कम्स एंड ट्राइज देयर बेस्ट. डिबेट में भी ये 3 कैटेगरीज आर लाइक वेरी मच क्राउडेड. तुम बिलीव नहीं करोगे ECA में योगा जैसी कैटेगरी भी होती है. ECA में इंस्ट्रूमेंट भी, फिर क्लासिकल वेस्टर्न ऐसा भी होता है. So there is a lot.
स्पोर्ट्स कोटा तो सबको ही पता है, तो वैसे ही है स्किल्स कोटा में। ओके, तो मैं जब गई थी 20 बच्चे थे वहाँ पर, आई वाज टॉकिंग टू एवरीबडी, हर किसी से बात की, फिर हर कोई अपना एक्सपीरियंस बताया था, किसी को कहा इम्प्रूव करने को इन अ वे कि तुम ये बॉटल बेच के दिखाओ, या फिर जो तुमने इमोशनली किया उसे हैप्पी करके दिखाओ, एंड लाइक दैट। सो इज वेरी स्केर्ड कि इसका भाई मैं बॉटल कैसे बेच के दिखाऊं, और इससे रिलेटेड क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल चेक कर रहे थे एंड कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे। वन थिंग अबाउट मी परफॉर्मेंस स्टेज, आई ट्राई टू रिमूव माई स्पेक्स ताकि मुझे जजेस ब्लर दिखे, पर वो मेरे एक्चुअली फेवर में नहीं था इस बार, बिकॉज जज और मैं काफी दूर से थे। मुझे सॉरी, मैंने चश्मा उतारा, मेरा सुनना भी बंद हो गया अपेरेंटली। तो मैंने हिंदी में इंट्रोड्यूस किया, दीदी ने कहा था कि हिंदी में कर देना वुड बी बेटर एंड ऑल दैट, सो आई डिड दैट। इन लोगों ने मेरे बाय द वे सर्टिफिकेट कंसीडर नहीं किया, तो मेरे मार्क्स 5 लगे हैं 15 में से, या दैट कुड हैव बीन सो मच बेटर, पर इन लोगों ने मेरा डिस्ट्रिक्ट कंसीडर नहीं किया। व्हाई? जस्ट बिकॉज डीओई ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। आई थिंक आई नीड टू स्टार्ट अनदर प्रोटेस्ट फॉर सीयूईटी, एक तो नॉर्मलाइजेशन जो मुझे लग रहा है दिल्ली वालों को इन्होंने जानबूझ के कम किया है, बिकॉज दिल्ली के बच्चे पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो, बट दिस इज जस्ट माई पर्सनल थिंग। मैंने बहुत ही कम बच्चे दिल्ली के देखे जिनके मार्क्स बढ़े हैं, पर बाहर जितने भी आउट ऑफ स्टेट्स हैं इन सबके मार्क्स बढ़ रहे हैं। आज इफ दिल्ली यूनिवर्सिटी is a central university and they don't want Delhi students to be a part of this and rather take some Delhi University colleges या फिर दिल्ली के बाहर जाएं। I don't know, but it's just not fair. It may sound like a blame game, but trust me man, मेरे कुछ intuition है while I'm saying this। मुझे genuinely लगता है कि दिल्ली के बच्चों के जानबूझ के मार्क्स कम किए गए हैं, just because उन्हें लगा था कि उनके पेपर अच्छा गया है। एनीवे, गेटिंग बैक टू द ईसीए थिंग, तो जजेस 6-7 थे, मैंने गई परफॉर्म किया। आई वाज एक्टिंग लाइक अ विलेज गर्ल जो गांव से आई है, एजुकेशन से रिलेटेड बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला थोड़ा उस सीन पे मैं कर रही थी, एंड हाउ गांव में कैसे रहा जाता है, हाउ माय पेरेंट्स ट्रीट मी। तो आई वाज मिमिकिंग दादी, पापा, मम्मी, छोटा भाई। इन्होंने मेरा पूरा एंड तक देखा नहीं, बीच में रोक दिया, बट आई एम वेरी ग्लैड इन्होंने मेरा एटलीस्ट उतना देख लिया। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एंड दे वर लाइक नाम, आई वाज लाइक सर मेरा नाम वैष्णवी गुप्ता है, मैं दिल्ली की आई हूँ। अच्छा, कुछ पसंद है, क्या करते हो, पहले भी कुछ किया है? मैंने बोला कि इसमें नुक्कड़ नाटक किया और कुछ नहीं किया। लाइक नो मैम, मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ नुक्कड़ नाटक ही कर रही हूँ, बिन अ फ्यू ईयर्स, 10th 9th से कर रही हूँ मैं। अच्छा, कुछ पसंद है? मैम मुझे गाना अच्छा, तो मुझे बच्चे ने बता दिया था कि इफ यू आर सेइंग तुम्हें डांस पसंद है तो वो तुमसे बोलेंगे बेटा नाच के दिखाओ, अगर तुम बोलोगे मैम मुझे गाना पसंद है तो वो तुमसे बोलेंगे गाना गा के दिखाओ, तुमने कुछ नहीं बोला तो तुमसे बोलेंगे एक्टिंग करके दिखाओ। जो लोग मोनोलॉग कर रहे थे, मोनोलॉग इज बेसिकली यू आर प्लेइंग ओनली योर कैरेक्टर और तुम बस बताए जा रहे हो और यू आर नॉट प्लेइंग अदर कैरेक्टर्स। मोनो एक्टर जब तुम एक ही बंदा अलग अलग कैरेक्टर सारे प्ले कर रहे हैं, तो आई थिंक उनसे एक्टिंग नहीं करवा रहे थे। एंड देवर फ्यू स्टूडेंट्स जिनका पूरा देखा था, मे बी उन्हें उनका अच्छा लगा या टाइम था, पर उन्होंने मेरा तो नहीं देखा, जो कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। तब आई रियलाइज कि मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ, रोई नहीं थी, बट मुझे ना ऐसा लग रहा था कि यू नो लाइक सैड किड हाउ इट बी कि मेरा क्यों नहीं देखा इन्होंने पूरा, दिस इज सो बैड, कितने गंदे लोग हैं, वैसे हो गया था थोड़ा मेरा, क्योंकि मुझे पता है वो सबका ही देख रहे थे। आई वाज द थर्ड लास्ट कैंडिडेट, तो सबके साथ क्या हो रहा है मुझे काइंड ऑफ पता चल रहा था, विच इज द गुड पार्ट एज वेल बट नॉट अ गुड पार्ट एज वेल, क्योंकि मैं अंडर कॉन्फिडेंट होती जा रही थी, बिकॉज हर कोई मुझे बता रहा है, उतरी हुई शक्ल लेके कि बीच में रोक दिया, ये पूछ लिया मुझसे, वो करवा दिया। एनीवे, आई चोज द इजीएस्ट पार्ट कि मुझसे ना गाना गवा लो आप। मेरे स्कूल में there was this accountancy class going on in class 12th या 11th and my teacher asked me to sing something and I was the second student most probably, तो she was like बेटा तो कोई भजन गा दो जो हमारे स्कूल में होता है, कोई गाना गा दो। उस टाइम पे मेरे दिमाग में गाना क्लिक हुआ था जब कोई बात बिगड़ जाए, तो एसीए ट्रायल यस, थिएटर का यस, मैं वहां पर गाना गा रही हूँ अपना प्ले बीच में छोड़कर, बीच में बेटा हाँ रुक हो गया गाना गा दो कुछ, एंड सिंगिंग जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी किया था, आई सिंग वेरी वेल एंड आई वाज लाइक दीदी आप पहले और आखिरी बंदे उसने ये कहा है, बिकॉज देखो वो ना खाली है पूरा ऑडिटोरियम इज प्रीटी गुड उनका, तो मे बी मेरी आवाज अच्छी लग रही है, आई रियलाइज कि मैं अच्छा साउंड भी कर रही हूँ अचानक से, मे बी आई एम नर्वस इसमें मैं अच्छे से गा रही हूँ अपने गला, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ वहाँ पे किसी को, इसलिए आई कैन सिंग वेल, मे बी आई सांग दैट। पर एक जज ना काफी मस्तीखोर था, टाइम उनका मुझे नहीं पता टाइम कंस्ट्रेंट था भी कि नहीं, दिस गाय टेल्स मी कि बेटा जो तुम्हारा प्रॉप है ना वो उठाते उठाते एग्जिट लेते लेते गाते हुए जाओ। तो राइट नाउ आई हैव माय बैग, मैं अपने स्टेज से बैग उतार रही हूँ एंड लाइक हो चांदनी जब कोई रात देता है हर कोई साथ, ये करते हुए मैंने एग्जिट लिया पूरा पैराग्राफ को स्टैंजा। काफी फन था, आई गॉट अ स्टोरी टू टेल। मैं यूट्यूब चैनल पे पूरा अपना इसका स्टोरी टाइम बना सकती हूँ अलग से, क्या एक्सपीरियंस है, क्या बच्चों से बातें हुई हैं, बच्चे वांट टू अपग्रेड फ्रॉम डीआरसी टू बेटर, एंड 3 डिबेट भी जा रहे हैं बच्चे, थिएटर में भी जा रहे हैं बच्चे, डांस भी करने जा रहे हैं, अ लॉट। खैर जो भी था अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा ये। एक्टिंग मेरे हिसाब से मेरी ठीक गई, आई एम नॉट श्योर कि इसको कैसे पसंद आया नहीं, मैं उनके एक्सप्रेशंस देख ही नहीं पाई, चश्मा मैंने लगाया नहीं था, सो विच इज अ गुड थिंग एज वेल बट काइंड ऑफ बैड टू। मेरे पहले भी काफी मतलब ऐसे ना अच्छे लोग थे जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, सम साइकोपैथ, सम दुर्योधन, किसी ने कोई वाइफ प्ले की थी एंड ऑल ऑफ दैट,
दैट वॉज दैट अबाउट इट। एंड अब ECA पे डिपेंड करेगा 85% या 70% उसका कंसिडर होगा ECA जब मुझे मेरा कॉलेज अलॉट होगा इस बेसिस पे। और इसमें आई डोंट थिंक सो इसमें जनरल SC ST होता है। ऑल्सो जो लोग अभी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे इन स्कूल राइट नाउ, एंड अब जनरल कैटेगरी से आपका हाथ पकड़ लूं पहले बताते हुए, अगर आपके 600 मार्क्स है तो वहाँ पर एक 500 मार्क्स वाला बच्चा बैठा होगा आपके साथ ही आपके ही कोर्स में SC ST कैटेगरी का, एंड डोंट फील सैड अबाउट इट, इट्स ओके, दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। अब कुछ बात नहीं करना चाहूंगी ज्यादा मैं इस बारे में, बट बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि इतना फर्क होता है। तुम्हें पता है 100 मार्क्स कितने होते हैं, या जितने मेरे कट गए नॉर्मलाइजेशन में। यस, इट कैन बी कि तुम जिस भी कॉलेज कोर्स में बैठे हो वहाँ पर बच्चे होंगे जो सिर्फ कास्ट बेसिस पे आए होंगे, वो तुमसे ज्यादा अमीर होंगे, बहुत हाई चांसेस है, बट देयर बी देयर। और अगर तुम किसी कास्ट से हो, यूटिलाइज एट दी मार्क्स, बिल्कुल भी लेजी मत हो जाना ये सोच के कि नहीं यार भाई मेरा तो आराम से हो जाएगा, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, लेजिट पीपल हु आर क्रिश्चियन और सिख, एंड दे गो लाइक कि हमारे पास तो 50% माइनॉरिटी आराम से हो जाएगा, और हो भी जाता है, मतलब कुछ गलत नहीं है। बट या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे सिख कॉलेज लाइक खालसा, एंड 2 खालसा हैं, एंड देयर आर मोर पंजाबी सिख कॉलेजेस, एंड लाइक जीजन मारी सेंट स्टीफन, सब में 50% कोटा है फॉर द रिलीजन। हिंदू में ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज हिंदू तो जनरल मास है। तो एनीवे, जस्ट किडिंग, मतलब जोक था, हिंदू का नाम हिंदू है तो मुझे लगा तो होना चाहिए, ऐसी मजे ले रही थी मैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। पर हाँ ये है कि थोड़ा पता रखो, इतना तो उस हिसाब से प्रिपेयर करो, स्पेशली फॉर जनरल में तो फिर तो हाथ नहीं पकड़ूंगी, बट मैं इतना कहना चाहूंगी पढ़ लेना अच्छे से प्लीज, बहुत ज्यादा अच्छे से। तुम्हारे पास तो कॉलेज के ऑप्शन ही बहुत कम है, ठीक है, एंड इफ यू आर जनरल फीमेल तो तुम तो बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। गर्ल, अगर तुम्हें गर्ल्स कॉलेज में नहीं जाना तो और अच्छे से, गर्ल्स कॉलेज अच्छा चाहिए तब भी अच्छे से। एनीवे, दिस इज इट। मेरिट बेसिस पे ये हुआ था वो हुआ था, कॉलेज मेरा कौन सा एक्सेप्ट नहीं हुआ था मैंने बता दिया। अब प्लान मेरे DU का ही है, बट अगर स्कॉलरशिप मिल जाए, मुझे DU बहुत टॉप टियर नहीं मिल रहा है तो मे बी नॉट। प्लान मेरे BCom ऑनर्स का ही है, बट मैंने BA प्रोग्राम भरा है, लाइक इकोनॉमिक्स प्लस साइकोलॉजी, कॉमर्स प्लस इंग्लिश, इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश, ऐसे वाले BA प्रोग्राम्स मैंने भरे हैं। प्लस मैंने फीस पे कर दी है अभी सत्यवती की। एंड अब अपग्रेड करने के लिए, जब तुम अपग्रेड करते हो सो यू डोंट गेट द ऑप्शन टू डिलीट समथिंग और लाइक add something, you can just put it down या up, ऐसे करके शिफ्ट कर सकते हो बस। तो मेरी प्रेफरेंसेस 59 के 59 ही रहेगी, मैं उसे 60 नहीं कर सकती हूँ, मैं उसे 58 नहीं कर सकती हूँ, बस मैं उसे ऊपर नीचे कर सकती हूँ अपने हिसाब से जैसे मुझे रखना है। बाकी इस बार की कट ऑफ SRCC की 924, जो कि मुझे थोड़ी कम लगी बट स्टिल काफी हाई है। 924 इसी कट ऑफ द फर्स्ट राउंड, एंड उसके बाद 900 प्लस ही गई है काफी नॉर्थ कैंपस की, वेंकी शहीद भगत सिंह की भी पांडी साउथ कैंपस से काफी निकल कर आ रहा है कॉलेज। आई थिंक मैंने पहले कभी नाम नहीं सुना था, रिसेंटली ही सुना है, तो उसकी इज ऑल्सो 800 प्लस आई गेस। या lot of colleges, पूरी feed is filled with colleges, but I think NTA has been very unfair. Even ECA में मेरे सर्टिफिकेट्स कंसिडर होने चाहिए थे, where I'm at fault यार। आज स्टूडेंट मैंने स्कूल से भी सर्टिफिकेट ले लिया, आज स्टूडेंट आई एम विलिंग टू गो थ्रू DOA, भाई मेरे इस पे कॉलेज डिपेंड करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और मुझे पता भी नहीं था, वरना आई थिंक मैं थिएटर पे और फोकस करती और कुछ और भी करने की कोशिश करती, बट मुझे पता नहीं था कि थ्रू दिस भी आई कैन डू समथिंग। बट हियर आई एम, आई ट्राइड माई बेस्ट, आई like hope for the best। तुम बताना तुम्हारा फर्स्ट कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है, एंड आई विश यू द बेस्ट। आई होप टू मीट ऑल ऑफ यू in the college that I'll be, if I'll be in a good college, or like yep, and I wish that you hope for me the best as well कि ECA trial अच्छा है, like genuinely just wishing best to all of you guys for boards या फिर for your CUBT score। एंड काफी लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं अभी, किसी का कोई अच्छा कॉलेज लग रहा है उन्हें, फिर उन्हें कोर्स वो मिल गया है that they desired। A lot of people are going to take partial drop as well, and let me tell you, जितने भी लोग SRCC में होते हैं, मुझे तो लगता है I've been opening LinkedIn just to see कि कैसे मैंने partial drop लिया था। I have seen people जिन लोगों ने रामदास में मिला था, but still they're taken like partial drop to get into SRCC। सो या इट्स मुझे लगता है काफी ज्यादा ओवर हाइप्ड है DU, नॉट गोना लाई, बट जितना अफोर्डेबल है उस हिसाब से। ऑल्सो मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि हिंदी इज कंपल्सरी इन DU, लाइक तुम कोई भी कोर्स लो, यू आर गोइंग टू स्टडी हिंदी। ईजी होती है, मुश्किल होती है, जो भी, बट हिंदी पढ़ रहे हो। तो मैं 10th के बाद हिंदी लिखना जो भूल चुकी थी, मैं कॉलेज में फिर से पढ़ रही हूँ, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस तो सबको ही पता है कितनी बुरी है वहाँ की, बट दिस इज इट। काफी सारा याद कर लिया मैंने। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग मी आप, और मुझे थोड़ा नहीं काफी ज्यादा तुम्हें लाइफ अपडेट मिल गया है, एंड नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट नॉर्मलाइजेशन स्कोर, नॉर्मल स्कोर, क्या किया है मैंने, किस पे डिपेंडेंट हूँ मैं। ना आई एम होपिंग, आई थिंक मेरा अपग्रेड हो सकता है कॉलेज, बिकॉज उनकी कट ऑफ काफी और
ज्यादा नहीं, काफी और कम गए क्या बोलना चाहिए, मतलब मेरा मार्क्स स्कोर ज्यादा है, जितनी कट ऑफ गई है उससे काफी ज्यादा, तो मुझे आराम से और कोई मिल सकता है। और मैंने बीए प्रोग्राम में कुछ भी ऐसे काफी सारे डाल दिए थे एंडिंग में, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ना। देखो, या हम लोग सोचते हैं कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाए, बुरे मार्क्स आएंगे, कैसे आएंगे, कोई ये तो नहीं सोचता ना कि बोर्ड्स हम देंगे ही नहीं, ये तो बस हो जाता है। मैं तो हूँ ही ऐसी, कुछ ना कुछ नया हो ही जाता है मेरे साथ। इट वाज हार्ड फॉर मी टू प्रिपेयर अपनी लास्ट डे, बट आई स्टिल डिड। एंड मैं काफी ऐसी एक्टिंग दादियों की आवाज निकालनी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी। आई थिंक द ड्रामा वाली थिएटर मी and the way I talk right now, like the way I put some accent sometimes and try to talk like that, और जैसे मैं एक्ट करती हूँ ऐसे बेटी and all that, so that's very weird। और तुमने करप्शन वाली वीडियो देख रखी, then you know मैं चिल्लाती हूँ नेताजी कैसे बनती हूँ मैं, so that's a thing truly versatile of me। Also look at my nails guys, look at my nails, this guitar and ECA made me do this। अब मेरा मन भी नहीं कर रहा है, I've always liked no nails, very small nails, so I'm back to that, my OG Vaishnavi thing। बाकी thank you so much for watching this video, please subscribe to my channel if you already haven't। थक गई हूँ मैं, stay hydrated, I'm going to be hydrated अभी फटाफट से as well because I'm so tired now। I'm actually free। इसलिए मैं हमेशा कहती आती कि मैं actually free तो नहीं हूँ, कि मेरे अभी सारे एग्जाम तो खत्म नहीं हुए, बिकॉज ये बाकी था अभी, ये अब भी खत्म हो गया है, तब सब खत्म है, बस मुझे टेंशन का वेट करना है। मुझे नहीं पता मेरी आज़ादी देश की आज़ादी से पहले होगी, देश की आज़ादी वाले दिन के बाद होगी, हो जाएगी। एंड या फिर अब आई एम नॉट श्योर कि मैं अपग्रेड करूंगी नहीं। अपग्रेड अगर मैंने किया तो फिर तो ऑफ कोर्स 14-15 मिड अगस्त के बाद ही जा रही हूँ मैं। पता नहीं कैसे दोस्त बनेंगे जब 1 महीने से लोग साथ है ओरिएंटेशन डे, पता नहीं क्या मिस करूंगी मैं। लेट्स सी ज़्यादा कुछ नहीं सोच रही अब मैं। एंड यू शुड ऑल्सो नॉट थिंक एज वेल, थिंग्स विल गेट बेटर व्हेरेवर यू विल गेट। आई थिंक डोंट बी सेटिस्फाइड बट मेक इट लाइक, ये कोई किसी कॉलेज में था जिसका नाम हुआ, सो बी द पर्सन में जिसका नाम हो जाए कि उसके कॉलेज में पढ़ रही है तू, लाइक वी से ना कि शाहरुख खान के कॉलेज में जा रही है तो, इम्तियाज अली के कॉलेज में जा रही है तू, या समथिंग लाइक दैट। एंड इवन अ लॉट ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स ऑफर यू। ओके, लेट्स नॉट मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, आई ऑलवेज हैव अ लॉट टू से, but I hope you understand my emotions, you know, I know you do। Okay, bye।